मैं लगा रहा हूँ आपकी प्रेजेंटेशन जनाब। जी आप कहाँ पे थे? इंटरनेट में आप मुझे नहीं रिसर्च पे पता, आप मेरी बात आवाज कर रहे थे? रिसर्च कर लिया था या बात कर रहे थे आप रिसर्च पे? सर्च कर लिया था, एजुकेशन भी कर लिया था। जी आगे चलिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे तो 10 बार डिस्कनेक्ट हो गया। हमाद कहाँ हो भाई? चालू हो? आपकी आवाज गायब हो गई है फिर। नहीं, इधर ही हूँ। तो बोलिए ना, फाइनेंशियल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन। नहीं सर, इधर ही हूँ। Financial transaction. Today it is possible to carry out financial transaction online. You can transfer funds, pay taxes and utility bills, or book movie tickets over the internet in the comfort of your office or home. Next slide. Disadvantages of internet. There are a lot of disadvantages of internet, but few of them are given below. Theft of personal information, spamming, malware threats, social isolation, obesity, and depression. Next slide. Theft of personal information. If you use the internet for online banking, social networking, or other services, you may risk a theft to your personal information such as name, address, credit card number, etc. People can access this information through unsecured connection or by planting software and then use your personal detail for their benefits. Needless to say, this may land you in serious trouble. Spamming. Spamming is sending of unwanted and useless email to a random person. These emails obstruct the recipient needlessly. They are illegal and cause frustration because they make it hard for people to access their email accounts. Bots are used to bombard your inbox with endless advertisements. This is quite perplexing as it always gets mixed up as it always gets mixed up with important emails. Next slide. Malware threat. One of the most annoying problems of internet is the ease with which any malware can infect our computer. These are malicious programs that plug the internet time and again. They attack a computer with the sole intent of causing harm. They can make the computer malfunction, or even this can be very costly, especially if you lose important data. Worse yet is the fact that you can easily fall victim to malicious software by clicking on a link on the internet that appears genuine. Next slide. The biggest problem with having the internet is its ability to create rift between the real and virtual world. There is an addiction for everything that pertains to the web, and that includes excessive surfing, online gambling, social networking, and gaming addiction. There are no psychiatric clinics and doctors that specifically cater to resolving the problems created by the internet. These addiction create both physical as well as mental issues that can lead to health complications if left unattended. So next slide. In the last but not least, the conclusion. A knife is a common object. The usage of knife depends on the user. If a doctor is using the knife, it will save a human life. If a murderer is using the same knife, it will take a human life. So can we blame the knife? Not possible. It all depends on who is using the knife. So internet is really great boon to our country. Some unwanted thing result to a great worse. So make use of internet to develop our country, illiterates to literate. Thank you. गुड। Thank you. सर अब उमर बिन जावेद की लगा दें। आरिफ साहब की लगाओ, किसकी लगाऊं? आरिफ साहब मौजूद है ना? सर मेरी अभी आरिफ ने कहा था मेरी प्रेजेंटेशन लगाएं। उमर बिन जावेद मौजूद हैं? यस सर, यस सर।
मैं उमर आपकी लगा रहा हूँ प्रेजेंटेशन। ओके सर। चलें उमर। Assalamu alaikum. Today the topic of my presentation is beauty of Balochistan. Next slide, sir. Next slide. नेक्स्ट पे ही हूँ भाई। Balochistan. Yes, Balochistan. Balochistan is the biggest province in area-wise, the biggest province of Pakistan. Balochistan shares border with Punjab and Khyber Pakhtunkhwa to the northeast, Sindh to the east, and Southeast Asia, southeast the Arabian Sea to the south, Iran to the west, and Afghanistan to the north and northwest. The port city of Gwadar is a quickly developing town that aims to serve as a key hub of future industrial and shipping activities. And Gwadar increases the importance of Balochistan in the whole world. Next slide, sir. History of Balochistan. Balochistan occupies the very southeastern most portion of the Iranian plateau, the setting of the earliest known farming settlements in the pre-Indus Valley civilization era, the earliest of which was Maghra, dated at 7000 BC. Next slide, sir. The beauty of Balochistan. The very first beauty of Balochistan, which I am going to discuss, is Pir Ghaib. Pir Ghaib waterfalls at a distance of 70 kilometers from Quetta on Sibbi Road is situated on a popular picnic spot known as Pir Ghaib. Here, a waterfall cascades down rocky mountainside, making its way through many streams and ponds. Among the shady palm trees, you need a four-wheel transport to reach the spot from the main road. So next slide. The second one is Mula Chotok. This place is surrounded by greenery and towering rocks. The attractive cities and waterfalls attract the tourists. The waterfalls are known as Chotok. The wide mountain crop rocks, rivers, and warm water pool of Mula Chotok are famous among tourists. This location is not only attract the tourists, but a number of local residents also come here for recreational activities. The largest river of Kovdar is Mula, that flows from these mountains all over the year and emerges with the sea. This is also called the nature water park because of the rocks and cuts and slipness on the rocks. We feel like a slide. We feel like a slide on it. The next slide, sir. Third one is Gwadar Beach. Ever thought how it would feel to see the wondrous Sphinx in Egypt in advance and not in pictures? Gwadar has its very own normal cut Sphinx situated on the highest point of the range. It precisely looks like the man-made model. Its excellence and marvel have realized numerous guests from everywhere. A warm water deep seaport on the Arabian Sea in the province of Balochistan, Gwadar port is situated on the three most important crossroads: the oil-rich Middle East, Central Asian, and Pakistan. It connects Pakistan to all top major trading places, providing it with major strategic importance. Next slide, sir. Astola Island, an inhabited island about 6 kilometers in length, some 25 kilometers south of the desert coast of Balochistan. It is the only significant offshore island along the north coast of the Arabian Sea and as much maintains the genetic and ecological diversity of the area. The endangered green turtle and possibly the hawksbill turtle nest on the beach at the foot of cliffs. And it is a very important area for endemic reptiles such as the Viper carnitas astoli. The island is said to have an aura of mystery and is venerated by Hindus. There are architectural remains of an ancient temple to the Hindu
goddess Kali Devi, as well as a prayer yard constructed for a Muslim saint associated with oceans. It serves as a base for fishermen between September and May, but is unfrequented during the period of rough sea and high tide. Next, let's. The conclusion of my presentation is that the many more tourists just because of the past, no more tourism was banned in Pakistan. No tourists attract towards Pakistan, but in present time, many tourists attract towards Balochistan just because of its beauty. Not always beauty lies in the greenery or green mountains. Sometimes it's in rocky mountains, or the waterfall falling from the mountains attract more tourism. Thank you. मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छी आपने प्रेजेंटेशन की है। और मैं बलूचिस्तान में मैंने 5 साल नौकरी की है 90s के अंदर। मैं सेंधक प्रोजेक्ट पे काम कर चुका हूं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। 2 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पीर गायब वाटरफॉल, और इससे और आगे आए ना थोड़ा जब सिब्बी की तरफ, तो एक जगह आती है आबे गुम के नाम से, कि वो जगह ऐसी है कि पीर गायब पे पानी है, आबे गुम पे पानी नहीं है, और उसके आगे पानी मिलता है। उस एक पर्टिकुलर बेल्ट के अंदर कोई पानी नहीं है। तो जो लोगों ने बताया था वहां पे, हिस्ट्री ये है कि कोई मलंग, कोई कलंदर वहां से गुजर रहा था, तो उसने पानी मांगा पीने के लिए। तो लोगों के पास पानी था लेकिन दिया नहीं उसको, तो उसने वहीं हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह इनका पानी छीन ले। तो वो वहां से पानी गायब हो गया। गुम मतलब आप कहते हैं फारसी में पानी को, और उस जगह का नाम आबे गुम पड़ गया। और दूसरी जगह जो आप दिखा रहे थे, आपने बताई है ब्यूटी ऑफ बलूचिस्तान में, सेंधक का आप बता रहे थे ना कि इसका जो बॉर्डर कहाँ मिलता है। इसका एक पॉइंट ऐसा है यहाँ पे इस जगह के, यहाँ एक छोटा सा कस्बा कह लें आप, उसको देहात कह लें, एक जगह है रबात नाम की। एक रबात तो जो है वहां पे है ना मोरक्को के अंदर, ये एक जगह रबात है। इस जगह पे तीनों मुल्कों के बॉर्डर मिलते हैं यहाँ पे, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। एंड आई हैव बीन टू दिस टाइम। और यहाँ पे इससे पहले, रबात से पहले एक हिल स्टेशन भी है। तो जाहिर है कि हम लोग फील्ड में होते थे, तो गाड़ियां भी होती थी, तो ये सारा मैंने एक्सप्लोर किया हुआ है पूरा इलाका चाकी डिस्ट्रिक्ट का, और ये चीजें मैंने देखी हुई। तो आपने मुझे वो याद दिला दी। एनीवे, इट वाज ए वेरी गुड प्रेजेंटेशन। अच्छा जी, अब और कौन सा आप मौजूद है, जरा नाम बता दें अपना मुझे हाजिरीन में से, ताकि मैं उनकी प्रेजेंटेशन लगा दूं। कोई ऐसे साहब हैं जो रह गए हैं? हम्माद हो गए, उमर बिन जावेद हो गए, और कौन बचा है? जोरेश साहब? सर मैं जोरेश जी, मैं जी भी सर। आपके अभी लगा देता हूँ आपकी प्रेजेंटेशन। 1 मिनट आप सब्र करें। जी जोरेश, यस सर, स्टार्ट करें? जी स्टार्ट करें जनाब। Hello guys, my name is Wadis Mohammad Khan and my CMS ID is 18172020. The topic which I choose for presentation is about COVID-19. Next slide sir. तो कोविड-19 है क्या, आज हम ये जानते हैं। कोविड-19 जो कि बहुत ही खतरनाक और जानलेवा वायरस है, इसका आगाज जो है वो चाइना के एक शहर वुहान से हुआ था दिसंबर 2019 में। और जो कोरोना वायरस का पहला केस जो बच्चे में रिपोर्ट हुआ था वो हुआ था 20 जनवरी 2020 में शेंजन में, जो कि चाइना का एक शहर है। 11 मार्च 2020 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर कर दिया था कि कोरोना वायरस जो है वो ऐसी तकलीफनाक बीमारी है या वायरस है जो कि बंदे से बंदे तक फैलेगा। और ये भी कह दिया था कि 28 मई 2020 तक 3.5 लाख के करीब जो पेशेंट है वो इसकी अमवात हो जाएगी कोरोना वायरस से। और ये भी इसमें ये बताया गया है कि जो कोरोना वायरस के जो ज्यादातर केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो दरअसल उन लोगों में हो रहे हैं जिनकी जो एज है वो अराउंड 50 है
और अबव 50 है। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता रहे हैं सिम्टम्स। ये सिम्टम्स कोरोना वायरस की अलामत को जाहिर करते हैं, जैसे कि फीवर और कफ, बट ये दरअसल 31% बच्चों में पाए गए। बाकी जो सिम्टम्स है वो ये हैं, फीवर के ये 58.3% पाए जाते हैं, और कफ वगैरह के 47.3%, गले में दर्द होना 18.3%, नज़ला वगैरह होना 15.9%, स्टमक पेन वगैरह ये सब 12.7%, ये सब पाए जाते हैं। और बड़ों में जो ये सिम्टम्स पाए जाते हैं वो यही होते हैं, लेकिन उनकी जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे फीवर्स की 71 to 83% हो जाती है, और बुखार वगैरह की और खांसी वगैरह की 65 to 80% हो जाती है। ये जो सिम्टम है बहुत कॉमन है। और जो बड़ों में और सिम्टम पाए जाते हैं वो सिम्टम्स ये है कि सर वगैरह में दर्द होना, मसल्स पेन होना, मसल्स अकड़ जाना। ये जो सिम्टम्स है वो बच्चों में नहीं, खाली बड़ों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। कोरोना इन पाकिस्तान, इसमें यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो वन ऑफ द क्लोजेस्ट नेबर है चाइना के, जहाँ से कोरोना का आगाज हुआ। और इसमें ये बता रहे हैं जो टोटल कंफर्म केसेस है पाकिस्तान में वो है 406,810। थर्ड पॉइंट आपको ये शो कर रहा है प्रूवन बाय केसेस जो कोविड-19 पाकिस्तान में हुए। केपीके में 47,919, सिंध में 1,77,625, पंजाब में 1,21,083, बलूचिस्तान में 7,268, और एजी के और जीपी में आपको नजर आ रहा होगा 7,067 केसेस है, और 4,683 केसेस। इस्लामाबाद में 31,165 केसेस हैं। ये और बेटा कब इसमें की लास्ट फिगर है पॉइंट में ये शो कर रहे हैं ये इस्लामाबाद। नहीं, ये फिगर आपने किस दिन ली है? ये कब की फिगर है? सर ये मैंने 2 हफ्ते पहले नेट से उठाई थी हाँ, जब ये मैं बना लेटेस्ट रहा नहीं था है। ठीक है, ठीक है, आगे चलें। सर। स्टार्ट करूँ? हाँ सर। नेक्स्ट ग्राफ में ये बता रहे हैं कि जो कोरोना वायरस में कंफर्म केसेस है उसकी कितनी वो हो गए, परसेंटेज वगैरह, कितनी डेथ्स हुई हैं उसके बारे में बता रहे, कितने रिकवर्ड हो गए हैं, कितने पेशेंट, और कितने टोटल केसेस आ गए, कितने टेस्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। रिकवरी, इसमें ये बता रहे हैं कि जिन जिन लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है वो बहुत जल्दी रिकवर हुए हैं। और जो सिम्टम्स जैसे मैंने आपको बताया था, बुखार वगैरह, सर में दर्द होना, गले में दर्द होना, ये सिम्टम्स में जारी रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये बहुत अचानक खत्म हो जाते हैं। वक्त के साथ साथ जैसे आप अपना चेकअप वगैरह या वैक्सीन वगैरह करवाते हैं उसके बाद ये सिस्टम और सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। और इसमें ये भी बता रहे हैं कि अगर आपको कोरोना हो गया है तो आप फौरन आइसोलेट हो जाएं, और अगर आप घर में है तो घर में क्वारंटाइन हो जाए, हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल में हो जाए। मैक्सिमम आपको 2 से 3 वीक लगते हैं रिकवर होने में, अपने आप को उस काबिल बनाने में कि आप कोरोना वायरस से फाइट कर सके और इसको अपने जिस्म से, इस वायरस से आप लड़ सकें। नेक्स्ट स्लाइड सर। हाउ वी प्रिवेंट टू कोरोना, इसमें 2 चीजें बताई गई है कोरोना वायरस से बचने के लिए। एक वो चीज है थिंग्स नॉट टू डू, वो चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए। जब भी आप बाहर जा रहे हैं या घर में अपनी कोई भी खाने की चीज दूसरों के साथ शेयर नहीं करें। अगर आप कोई बाहर वगैरह से आ रहे हैं, आपके हाथ साफ नहीं है या कहीं से भी आ रहे हैं, तो अपने सबसे पहले अपना हैंड वॉश करें, और बार बार अपने नोज को और अपने माउथ को बार बार टच नहीं करें एनिमल प्लेसेस वगैरह से, और फूड जिधर एनिमल्स के फूड वगैरह मिलते हैं जिधर वो उन जगह जाने से गुरेज करें। और जो पीपल, जिन लोगों को बुखार वगैरह है, सिक है, बीमार है, उन लोगों से अवॉइड करें क्योंकि उससे भी कोरोना फैल सकता है। और क्राउड, ज्यादा रश वाले जगह पे मत जाएं जिधर बहुत रश है, शॉपिंग मॉल वगैरह हो गया और बाकी दुकानें वगैरह हो गई जिधर रश हो, उस जगह जाने से गुरेज करें क्योंकि उधर से भी कोरोना वायरस फैल सकता है। थिंग यू शुड डू, वो चीजें जो आपको करना चाहिए। आप बाहर वगैरह से आ रहे हैं तो आपको अपना जो हाथ है वो 20 सेकेंड तक अच्छी तरीके से धोना चाहिए। और आप कहीं ज़्यादा बाहर जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, स्कूल वगैरह, इवन अपनी शॉप पे जा रहे हैं, तो मास्क वेयर करें, इससे आप प्रोटेक्ट में रह सकते हैं कोरोना वायरस से। आपको कोई भी छींक आ रही हो या नज़ला हो तो आप प्लीज़ टिश्यू का इस्तेमाल करें ताकि जर्म्स फैले नहीं। और अपना डेली उस पर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहें। नेक्स्ट स्लाइड सर। वाई डू वी नीड अ वैक्सीन, इसमें ये बता रहे हैं कि कोरोना वायरस ऐसा वायरस है जो कि अगर किसी को हो जाता है तो वो अंदर से पूरी बॉडी को वीक कर देता है। तो उस वीकनेस को दूर करने के लिए और हमारी बॉडी को उस काबिल बनाने के लिए ताकि हम उस वायरस से फाइट कर सके, हमें वैक्सीन की जरूरत होती है। तो वैक्सीन इसलिए हमें काम आती है ताकि हम ये कोरोना वायरस से फाइट कर सकें और अपने आप को पहले की तरह रिकवर कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड सर।
प्रोग्रेस ऑफ वैक्सीन मेकिंग। साइंटिस्ट ने ये कोरोना वायरस के बाद बहुत मेहनत और मुशक्कत के बाद ये वैक्सीन बनाई, जो कि अब तो ये हर जगह आ गई है वैक्सीन कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए और इस वायरस को अपने बॉडी से निकालने के लिए। और दूसरा ये कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं पाकिस्तान में, डॉक्टर फरीदा, उन्होंने ये कह दिया था कि 20 मिलियन जो ये कोरोना वायरस की वैक्सीन है चाहिए होंगी, ताकि हम अपने 20% पॉपुलेशन को कोरोना वायरस से सेव कर सकें एट द एंड ऑफ 2021 तक। और फिर इसमें यह भी बताया गया है कि जो सेकंड वेव जो कोरोना वायरस की आएगी उसमें घबराने की बात नहीं है। उसमें अगर SOPs को फॉलो करें, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, मास्क पहनना, अपने आपको टोटल वो मास्क वगैरह, हैंड वॉश वगैरह वो सब करेंगे तो हम कोरोना वायरस से सेफ रह सकते हैं सर। नेक्स्ट स्लाइड। ट्रीटमेंट इसमें ये बता रहे हैं, जो कोरोना वायरस से बचने के लिए जो सबसे मेन ट्रीटमेंट है वो है सपोर्टिव केयर। जितनी आप केयर करेंगे अपनी, आप उतने जल्दी रिकवर होंगे। और इसमें ये बता रहे हैं कि द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हैज फोकस्ड ऑन 2 डिफरेंट स्टेजेस। जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है इन्होंने जो फोकस किया है वो 2 स्टेजेस पे वो कर रहा है। वो है, एक है एंटीवायरल ट्रीटमेंट और दूसरा है इम्यूनोमोड्यूलेटरी ट्रीटमेंट। एंटीवायरल ट्रीटमेंट जो है वो कंट्रोलिंग वायरल रेप्लिकेशन विच कुड बी यूजफुल मेनली इन अर्ली स्टेजेस, जो कि अर्ली स्टेजेस में इन्फेक्शन से वो करता है। और दूसरा जो है वो कंट्रोल करता है डिलेक्टरीज इफेक्ट ऑफ एन एग्जेसिव इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स वगैरह को विच अकर इन इंटरमीडिएट एंड लास्ट स्टेज ऑफ डिजीज, जो लास्ट स्टेज वगैरह डिजीज पे वो करता है। थैंक यू सर। वेरी गुड जनाब, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है। अच्छा जी, और कोई है जिसने प्रेजेंटेशन करनी हो? एनीबॉडी मैं रह गया मोहम्मद अरीफ जी। सर मैं भी रह गया हूँ। नाम बताइए ना भाई। रेहान साहब? जी जी मोहम्मद अरीफ साहब, मैं तो आपको आवाज दे रहा था भाई, आप तो थे ही नहीं। 1 मिनट पहले आरिफ साहब की हो जाए तो फिर इनकी भी कर लेते हैं। सर वो नेट इश्यू हो गया था। आरिफ साहब, चलिए आरिफ साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। Assalamu alaikum, my dear classmates and respected teacher. My name is Mohammad Arif and today I am here to deliver my presentation. The topic which I have selected from my presentation is global warming. The reason that I choose this topic is to create awareness among my class fellows regarding global warming, its causes, and how to prevent it. Next. So let's discuss global warming. So basically, what is global warming? Global warming is a long-term heating of Earth's climate system observed since the pre-industrial period between 1850 and 1900 due to our human activities and burning of fossil fuels and many other activities. The term global warming is frequently used with the term climate change, as they are both produced due to warming and they cause same effects on our planet. Basically, global warming is termed as commonly measured increase in Earth's global surface temperature. Next slide. So now we discuss causes of warming. As I mentioned in previous slide, global warming is an aspect of climate change referring to rise of planet's temperature. So it is mainly, as you can see in the picture, it is mainly caused by burning of fossil fuels, deforestation, livestock, and release of greenhouse gases in the atmosphere. Next slide. Now first we will discuss the greenhouse effect. As you can see in the picture, I will explain this picture. So basically what happens, the greenhouse effect is the warming of Earth's surface and troposphere, which is the lowest layer of atmosphere. And it is caused by the presence of greenhouse gases in the air. So as you can see in the picture, some
sunlight, when it comes to the Earth's surface, is reflected by Earth's atmosphere, and some of the sunlight is absorbed by the surface, which makes it warm. The infrared radiation is then emitted from the surfaces. Some of the infrared radiation escapes into the surface space, but some of the infrared radiation is absorbed by the greenhouse gases, which results in global warming as these infrared radiation re-radiated in all directions, due to which the surface of Earth gets warm. Next slide. Now I would like to discuss agriculture. Basically, you all will be thinking that agriculture has nothing has not a direct link with global warming, but basically it is also one of the major causes of global warming. Animals, livestock produce methane gas, which is basically a greenhouse gas, and it contributes to global warming. So when livestock is grazed at a large scale, the amount of methane is produced in big amounts, which contributes to global warming. Also, farmers use fertilizers in order to increase their crop yields, but these fertilizers reduces nitrous oxides, which is another greenhouse gas, and hence it also contributes to global warming. Next slide. Now I would like to discuss deforestation. Basically, you all know that plants and trees play an important role in regulating the climate, because they absorb carbon dioxide from the air and release oxygen back into it. But humans actually clear vast areas of vegetation around the world for their own purposes like farming, urban development, and infrastructure. So basically, when this vegetation is removed or burnt, the stored carbon dioxide is released back into the atmosphere, and the concentration of CO2 in atmosphere increases. Thus, it contributes to global warming, as carbon dioxide is another greenhouse gas. Next slide. Now I would like to discuss the methods to prevent global warming. First, some of the measures to prevent global warming are reduce, reuse, recycle, plant more trees. We can switch to renewable energy sources, using energy efficient devices, and turn off electronic devices when they are not in use. Next slide. So now I would like to conclude my presentation. Basically, the global warming has now become a much severe issue, as we are all aware that the global temperature of our planet is rising, and the glaciers are melting and sea levels are also rising. This weather change is drastically affecting wildlife and forests. So basically, what is our role? Our role is to spread awareness among people regarding global warming and what are the causes that is causing the global warming. So we can prevent these causes, and we should adopt the measures which I mentioned, like planting trees, using renewable energy sources like wind, solar, and using energy efficient devices, so that we can prevent global warming and we can make our Earth, our planet safe. Thank you. आपने इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं बताई है कि 10 दरख्त जो होते हैं ना बड़े, वो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं एनवायरनमेंट से। तो जितने आप दरख्त ज्यादा लगाएंगे, वो आपको हेल्प करेगा कार्बन लोड को, जो हम कहते हैं ना, उसको कम करने में। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो जा रही है उसको आप एलिमिनेट तो बिल्कुल नहीं कर सकते ना, तो जो बचती है उसको करने के लिए 10 दरख्त जो है लगाना एक उसके बराबर है। अच्छा जी, अब कौन सा आप कह रहे थे कि मैं रह गया हूँ? अब्दुल अजीज साहब, एक मिनट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। लगाता हूँ आपकी प्रेजेंटेशन, एक मिनट सर। प्रेजेंटेशन मैंने दे दी थी सर, इशू था मेरे मिड पेपर का। सॉरी, तो मैंने वो स्क्रीनशॉट जो है वो ग्रुप पे सेंड कर दिया सर। मैंने विद इन टाइम पेपर अपलोड कर दिया था। पेपर दे दिया था आपने? पेपर की बात कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन देनी है आप? जी हाँ सर, मैंने स्क्रीनशॉट
नहीं वो तो नहीं कर दिया था, प्रेजेंटेशन लेकिन मैंने मेरे पहले ही पास दिन वो दे दी नहीं थी। आई है प्रेजेंटेशन, आप अब दोबारा भेज दें। आपकी प्रेजेंटेशन तो हो चुकी है ना, अभी कोई और बाकी है? अब्दुल अजीज साहब, आप मुझे दोबारा जी भेज जी दें। सर आप मुझे प्रेजेंटेशन दोबारा भेजूं मेल या कर मिड देना पेपर भेजूं सर? पेपर। अभी कोई और ऐसा स्टूडेंट ठीक है है सर, मैं जिसने कर करनी देता हो हूँ। प्रेजेंटेशन? जी कोई सर, मैं हूँ रेहान अख्तर। जी, रेयान साहब, एक सर मिनट। मेरी, जी जी बिल्कुल। राफिद, जावेद, फरूक, रजा, आरिफ, रेयान अख्तर। जी रेयान, शुरू करें, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। First of all, my topic of speech is Toyota Supra. Next slide. टोयोटा सुपरा एक इस तरीके की गाड़ी है कि ये जापान की टॉप मोस्ट जेडीएम कार कहलाई जाती है। जेडीएम स्टैंड्स फॉर जापान डोमेस्टिक मोटर क्लब। इसकी बना इस तरीके से कि ये ज्यादातर ड्रिफ्टिंग पर्पस, फॉर रेसिंग पर्पस के लिए बहुत यूज होती है, क्योंकि इसकी जो इंजन की शाफ्ट है उनमें टॉर्किंग, इसके इंजन के अंदर टॉर्किंग इतनी रफ्तार से होती है कि ये जब टर्बो के ऊपर जाती है तो ये रुकने का नाम नहीं लेती है। और बेसिकली इसका जो इंजन है वो है 3000 सीसी 2JZ GTE इसका इंजन है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंजन इन द होल कार्स। और ये बहुत एक ज़बरदस्त इंजन है जिसके अंदर हम रेस भी कर सकते हैं, हम ड्रिफ्ट भी कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें इस इंजन की मदद से हम कर सकते हैं। अब ये टोयोटा सुपरा जो है ये सिर्फ टोयोटा सुपरा के बहुत सारे मॉडल्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो सुपरा MK4 है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट टॉप जेडीएम कार के अंदर ये नंबर 1 या नंबर 2 के ऊपर आती है। जीटीआर से पहले भी ये बहुत नाम है इसका। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट पे हूँ भाई। फोर्थ जनरेशन सुपरा की जो आप बात कर रहे हैं, ये फोर्थ जनरेशन सुपरा है और इसकी जो ट्रांसमिशन है वो है W58। और ये डायमेंशन वाइज कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि इसके टायर जो हैं वो बहुत एक स्मूथली तरीके से रोटेट होते हैं। जब ये रोड के ऊपर जाती है तो बहुत स्मूथ तरीके से इसके टायर रोटेट होते हैं, तो इसमें कोई ना टायर निकलने का खदशा होता है। और ये बहुत एक पावरफुल इंजन और पावरफुल गाड़ी, पावरफुल ट्रांसमिशन है। इसकी जो इंटीरियर है वो एक इस तरीके से है कि ऐसा लगता है कि हम फ्लाइंग जेट, जो जेट होता है जहाज, उसके अंदर हम बैठ कर सफर कर रहे हैं। इसके अंदर टर्बो टर्बो भी आया है। जब इसके टर्बो आप रन करते हैं तो वो आप पे डिपेंड है कि आप अपनी गाड़ी को कितने हॉर्स पावर के हिसाब से रखते हैं। बिकॉज 17 सीसी का एक हॉर्स पावर होता है, वो आप पे डिपेंड है कि आप इसको 1000 हॉर्स पावर रखें, 99 हॉर्स पावर रखें, इट्स डिपेंड टू यू। एंड इसका जो शेप है वो एक सोलर कॉप है। ये US लेक्सिस SC टर्बो मॉडल 17 इंच के इसके व्हील आए हैं। और इसके जो ब्रेक्स हैं वो इतने शार्प हैं W58 गियर के साथ कि इसके ब्रेक्स फौरन पैड पे रखते ही गाड़ी रुक जाती है। सही है। एल्युमिनियम के इसके टायर आए हैं और ये एक 16 इंच की इसकी पूरी शाफ्ट है, 5 स्पोक एल्युमिनियम अलॉय व्हील्स। द नेचुरली इसकी जो ये नेचुरली जो इसका मॉडल है ना वो एक तरीके से स्पोर्ट्स लुक दिया है। आप इसके ऊपर स्पॉइलर भी लगा सकते हैं। मोस्ट ऑफ, हालांकि पाकिस्तान के अंदर आते आते 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपए की हो जाती है, लेकिन ये बाहर भी बिल्कुल फीकी पड़ती हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। जी अच्छा, अब इसके जब निचले हिस्से की तरफ आते हैं तो ये S7 टर्बो 3000 GT RZ विद 309 kW। फोर्ट इसकी जो जेन्युइन HP आई है 414 414 HP आई है।
ठीक, और इसके हर टायर के अंदर माइनर से डिफरेंस होता है ताकि वो रोड ग्रिप सही से करें, अपने आप को वो सही से रोटेट करें। और मार्च 2002 के अंदर ये सबसे पहले जेनिया मोटर्स शो के अंदर एक जापानीज कोच बिल्डर है कि उसने इसको पूरा जेडीएम मॉडिफाई करके इसने इसकी ओपनिंग करी थी, जिसकी तब से लेके अब तक ये कार जो है ये बहुत टॉप ऑफ द जेडीएम लाइंस के अंदर ही आती है। नेक्स्ट स्लाइड सर। आपके पास 2 मिनट है खत्म करने के लिए। जी सर। बाय द लेट 1990s के अंदर इसका जो है जापान के अंदर ये इन्वेंट हुई थी। इसका कैलिफोर्निया एयर रिसोर्स बोर्ड के अंदर इसका पूरा एक स्टेट है नोन एज सुपरामेनिया, जो सुपरामेनिया कहलाती है। वहाँ पे आपको सिर्फ इसी टाइप की गाड़ियाँ दिखेंगी। पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, ईच एंड एवरीथिंग इज पावर। 18 केजी मैक्सिमम टायर वेट है इसका। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आई है, लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ज़्यादातर लोग नहीं यूज़ करते बिकॉज ऑफ इट्स टॉर्किंग, क्योंकि मैनुअल के अंदर टॉर्किंग का वो मज़ा नहीं है जो ऑटो के अंदर, टॉर्किंग का वो मज़ा नहीं है जो मैनुअल के अंदर है। जी सर, नेक्स्ट स्लाइड। अब ये देखें इसका जो इंटीरियर है, ये इंटीरियर इस तरीके से है कि जब आप इसके अंदर बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि आप जेट के अंदर बैठे हैं। इसके आरपीएम, इसका मीटर, इसका फ्यूल जेट इस तरीके से इन लोगों ने बनाया कि ऐसा लगता है कि बंदा जेट के अंदर बैठा हुआ है। एंड इसका और ये रेयर व्हील ड्राइव है जिसकी मदद से हम इसको ड्रैग रेसिंग, और इट हैज़ वेरी गुड पिकअप। टॉर्किंग के लिहाज से हम बहुत ज़बरदस्त पिकअप है। जैसे कि हम इस पर नॉच या टर्बो लगाते हैं तो फिर चलाने में भी उसी हिसाब से मज़ा आता है। थैंक यू सर। भाई रेहान साहब, ये टू टेक्निकल, आपने स्लाइड्स इतनी क्राउडेड बनाई हैं। ये देखो, मैंने आपको पहले जो, अगर आप पहले दूसरी प्रेजेंटेशन अटेंड करते, जो मैं जिनको लोगों को कमेंट कर रहा था कि स्लाइड जितनी कंजेस्टेड होगी आपका ऑडियंस उतना ही लूज हो जाएगा। ये मैं आपका शौक लग रहा है मुझे गाड़ियों का, आपने बनाई, बड़ी अच्छी बात है। जी बट सर। स्टेट के जी पूरी पूरी स्लाइड में आप उसके ये क्या है, ये क्या है, इतना आपने ओवरलोड इंफॉर्मेशन कर दी है ना कि मतलब बेड़ा गर्क हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया फ्रेंकली। नहीं सर, असल में बताऊं सर, मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई है सर। मेरा शोल्डर टूटा हुआ है, मेरा एक्सीडेंट हुआ हुआ है सर। तो मैंने नहीं, बस वो जल्दी अपनी जल्दी में जगह जो समझ में आया प्रेजेंटेशन की मैंने मैं वो बात लिख कर दिया। रहा हूँ ना, वो उसका प्रेजेंटेशन से क्या ताल्लुक, प्रेजेंटेशन आपने बनाई है ना। एनीवे, मतलब जो जैसी सर वो असल प्रेजेंटेशन में होनी जल्दी जल्दी में चाहिए बनाई। वो नहीं है। अच्छा भाई, मैं खत्म कर रहा हूँ, टाइम मेरे पास रन आउट हो रहा है। कल मैं नॉर्मल टाइम पे क्लास लूंगा और जो 8 लोग रह गए हैं वो अपना खत्म कर ले। जिसने कल प्रेजेंटेशन नहीं की वो 0 मार्क करके मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ कि 26 जून के बाद आपके फाइनल शुरू हो रहे हैं, तो उससे पहले पहले मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप लोगों को खुदा हाफिज। ओके सर। कल ओके 2 सर। से मैं मैसेज कर दूंगा